Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter that is The Great Stone Face 1. It is from CBSE class 8 English Honeydew book, lesson number 9. And in this video, you will see the explanation, line by line explanation. In the end, you will see a summary and you'll also see difficult words meaning. So let's start now with introduction. So the Great Stone Phase 1 revolves around the old prophecy that persists in a valley which has the great stone face beaming over it. Now as you can see here, आप देख सकते हैं कि कैसे जो है स्टोन के ऊपर एक फेस बना हुआ है जिसका बीम जो है प्रतिबिंब जो है आपको दिख रहा है माउंटेन्स के ऊपर स्टोन्स के ऊपर राइट. And prophecy is like a statement, आप भविष्यवाणी आकाशवाणी कह लीजिए. So the old prophecy says that one day a man will come bearing likeness of the great stone face. जो आकाशवाणी हुई थी उसके हिसाब से एक दिन एक व्यक्ति आएगा जिसके अंदर दयालुता भरी रहेगी और उसका चेहरा जो होगा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा. ही विल बी द नोबलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ हिज टाइम. वह उदार व्यक्ति होगा और काफ़ी महान व्यक्ति होगा अपने समय का. वन डे अ मदर टेल्स हर सन. एक दिन एक माँ जो है अपने बेटे को बोलती है जिसका नाम अर्नेस्ट होता है. उसको इस भविष्यवाणी के बारे में अबाउट द प्रोफेसी एंड इस प्रोफेसी के बारे में बतलाती है उसको. सिंस देन ही ईगरली अवेट्स द अराइवल ऑफ दैट मैन. और उस वक्त से अर्नेस्ट जो है उस भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले व्यक्ति का जो है इंतज़ार करता रहता है. काफ़ी ईगरली काफ़ी उत्सुकता के साथ उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा होता है. द स्टोरी फोकसेस ऑन हाउ द inhabitants of the village misjudged two men to be the one spoken about in prophecy, and how even after waiting for so long Ernest is still hopeful that the man will come. और वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स जो वहाँ के लोकल लोग जो रहने वाले थे उस गांव के उन लोगों ने इन दोनों व्यक्ति को सही से समझा नहीं और उनके हिसाब से जो है वो इतना लंबा टाइम इंतज़ार करने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं. लेकिन अर्नेस्ट ऑन सेकंड हैंड अदर हैंड आई मीन दूसरे हाथ पे जो है अर्नेस्ट वो इस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा है कि वो आएगा. आई कैन सी हियर सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल टॉप्स ह्यूज रॉक्स सीम टू अज्यूम वेरियस शिप्स. ऐसा प्रतीत होता दूर से देखने पे कि जो हिल टॉप पे जो ह्यूज रॉक है बहुत बड़ा चट्टान है उसके ऊपर जो एक आकृति बनी हुई है चेहरे की वो अलग अलग शेप्स में दिखती है. दे मे रिजेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर. कभी कभार जो वो इंसानी रूप में दिखता है तो कभी कभार वो जानवर के रूप में भी दिखता है. पीपल अट्रीब्यूट स्टोरीज टू दिस शेप्स. लोग इसके बारे में कहानियाँ बनाते हैं. सम स्टोरीज कम ट्रू. कुछ कहानियाँ सत्य हुई है सही हुई है. अदर्स डोंट. और कुछ कहानियाँ जो है सही नहीं हुई है. The great stone face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? तो क्या ये भविष्यवाणी किस तरह की भविष्यवाणी थी उसके बारे में पढ़ेंगे. क्या ये सच हुआ इसके बारे में भी जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट line by line explanation. Now one afternoon, hold on just 1 second. Now it says one afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. They had only to lift their eyes and there it was plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. And hold on. And what was the great stone face? The great stone face was a work of nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. If the spectator approached too near,
he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled upon one another. But seen from distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the beginning a face that was continually beaming over it. Now let me explain it. तो इस पैरा में एक्चुअली कहता क्या है, राइटर बताते हैं कि एक शाम की बात है जब सनसेट हो रहा था, तो एक माँ और एक बेटा जो है अपने कॉटेज के बाहर बैठ करके उस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे. एंड इट वाज सो बिग दैट इट ओनली रिक्वायर्ड देम टू लिफ्ट. और ये कलाकृति जो थी, वो जो फेस, जो ग्रेट स्टोन फेस था, वो इतना बड़ा था कि एक पलक झपकने से ही वो उनको दिख जाता था, काफ़ी साफ साफ दिख जाता था. बट सच्चाई में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी दूर था, उनके कॉटेज से माइल्स अवे था, मीलों दूर था. लेकिन फिर भी जो है उस कलाकृति को, उस आकृति को जो है साफ साफ नज़रों से देखा जाता था. और उसकी खूबसूरती जो है शाम के टाइम पे जब सनशाइन उसके ऊपर पड़ता था तो और भी निखर के बाहर आता था. नाउ इफ़ यू मे आस्क व्हाट रियली वाज द ग्रेट स्टोन, अगर आप सच में जानना चाहते हो कि ग्रेट स्टोन फेस एक्चुअली में था क्या, तो उसके बारे में जैसा कि लोग बताते हैं कि द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ पीस ऑफ आर्ट मेड बाय नेचर. ये प्रकृति का एक देन था, प्रकृति का एक वरदान था, जो कि एक परपेंडिकुलर साइड ऑफ माउंटेन के ऊपर बना हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे ह्यूज इमेंस, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप थे, जैसे कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा, दूसरे पत्थर के ऊपर तीसरा, ऐसे करके जो है पाइल्ड अप था. और उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ये ग्रेट स्टोन फेस जो है दिखता था, काफ़ी खूबसूरत दिखता था. द रॉक्स वर पाइल्ड दैट व्हेन लुक्ड एट फ्रॉम अ पार्टिकुलर डिस्टेंस इट सीम्ड लाइक एज अ ह्यूमन फेस. और नैरेटर बोलता है कि अगर आप उसको एक पार्टिकुलर डिस्टेंस से, एक निश्चित दूरी से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा जैसे एक इंसानी चेहरा जो है उस पत्थर के ऊपर बना हुआ है. लेकिन अगर आप उसको नज़दीक से जा कर के देखना चाहोगे, क्लोज से जा कर के देखना चाहोगे, तो सिर्फ आपको वहाँ पे पत्थरों का ढेर मिलेगा जो एक के ऊपर एक खड़ी हुई है. नाउ इट सेज कि श्योरली व्हेन लुक्ड एट फ्रॉम माइल्स अवे एज द क्लाउड्स गैदर्ड, अगर आप दूर से देखोगे और अगर उसके ऊपर उस पत्थरों के ऊपर जो अगर कहीं पे, होल्ड ऑन जस्ट वन सेकेंड, बादलों का अगर झुंड इकट्ठा हो जाए, पत्थरों के ऊपर जिस जगह पे वो ग्रेट स्टोन फेस दिखता था, उन पहाड़ों के ऊपर अगर बादलों का झुंड इकट्ठा हो जाए तो वो ग्रेट स्टोन फेस बिल्कुल अलाइव हो जाता था. ऐसा लगता था जैसे सजीव हो गया, वो स्माइल करता था, वो बातें करना चाहता था, ऐसा प्रतीत होता था. मेनी पीपल बिलीव दैट द फर्टिलिटी ऑफ द वैली इज़ ऑल्सो बिकॉज द काइंड ऑफ जेंटल फेस वॉज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग ओवर इट. बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना था कि जो वैली है, ये जो घाटी है, वो इसलिए उपजाऊ है क्योंकि ये जो काइंड और जेंटल फेस जो बना हुआ था उस माउंटेन के ऊपर, परपेंडिकुलर साइड के ऊपर, वो हमेशा स्माइल करता रहता था. इसके कारण से वहाँ पे जो है काफ़ी फर्टिलिटी पाई जाती थी. नाउ विल सी द वर्ड मीनिंग, दैट इज़ परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर ऑल ऑफ यू नोज, इफ़ यू हैव रेड द मैथ्स. परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? क्लिफ और रॉक फेस राइजिंग वेरी स्टीपली. नेक्स्ट है आपका इमेंस, दैट मीन्स ह्यूज, काफ़ी बड़ा. इनॉर्मस, इमेंस मीन्स विशालकाय, इनॉर्मस मतलब काफ़ी बड़ा. जाइगेंटिक मतलब इमेंस, वो भी विशालकाय ही होता है. क्लस्टरिंग का मतलब होता है गैदरिंग. एंड बेनिंगन का मतलब होता है काइंड एंड जेंटल. सो दिस आर द वर्ड मीनिंग्स यू कैन रिमेंबर. प्रोफेसी मतलब स्टेटमेंट दैट टेल्स व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, जैसे कि आकाशवाणी या भविष्यवाणी. A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. जैसा कि कहानी में
के स्टार्टिंग में पहले बताया गया कि एक माँ और उसका बेटा जो है अपने कॉटेज के डोर पर बैठ करके उस ग्रेट स्टोन को गेज कर रहे थे, देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे. द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट. उस बच्चे का नाम जो था अर्नेस्ट था. मदर said he, while the great faced smile on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. तो वो बच्चा जो है अपनी माँ को बोलता है, माँ मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रेट फेस जो है उसके ऊपर मुस्कुरा रहा, स्माइल कर रहा उसको देख करके, और वो चाहता है कि वो उस फेस से बात करे. क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा जो काफ़ी दयालुता अपने अंदर में भरा पड़ा है उसके अंदर में, और उसको ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ जो है काफ़ी प्लीजेंट होगी. ही सेज इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच. और अगर मुझे कभी ऐसा व्यक्ति जो ऐसा कि ग्रेट फेस स्टोन का है उस चेहरे वाला व्यक्ति उसको अगर कभी मिलेगा तो उससे काफ़ी प्यार करेगा, उससे काफ़ी अपनापन महसूस करेगा. इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ, अगर पुरानी भविष्यवाणी अगर नज़दीक आ जाए जैसा कि होने वाला था, तो हो सकता है कि हम लोग उस व्यक्ति को जो है कुछ दिनों के अंदर में देखेंगे. उसी चेहरे वाले व्यक्ति को हम लोग देखने वाले हैं. नाउ व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर. तो अपनी माँ से वो बच्चा जो है अर्नेस्ट पूछता है कि आप किस आकाशवाणी या भविष्यवाणी की बात कर रहे हो. ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट. अब उसके अंदर जो है काफ़ी उत्सुकता बन गई थी, भर गई थी, और वो बार बार उससे पूछने लगा कि प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताओ. सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर. तो उसकी माँ ने जो है उसको एक कहानी बताया जो कि उसकी माँ के माँ ने उसको सुनाया था. व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर दैन लिटिल अर्नेस्ट. जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी तब उसकी माँ ने, अर्नेस्ट की माँ ने उसको कहानी सुनाई थी. दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बॉर्न नियर हियर who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to great stone face. तो वो बोलती है कि उसकी माँ ने ऐसा बताया था कि आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर डेज में जो है एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा इसी वैली के आसपास में, जिसका डेस्टिनी जो है, जिसका भविष्य जो है काफ़ी मतलब ऐसा होगा कि वो आने वाले समय में आगे चल के महान बनेगा, काफ़ी विद्वान बनेगा, और अपने समय में जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध होगा, जिसका चेहरा जो है वो काफ़ी रिजेंबल करेगा एग्जैक्टली जैसा चेहरा उसको उस पहाड़ के ऊपर दिख रहा है उस चेहरे से मिलता जुलता होगा. Many still had faith in his old prophecy. बहुत सारे लोगों को जो है भरोसा था उस पुरानी भविष्यवाणी या आकाशवाणी में. But other took it to be nothing but idle talk. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसको सिरे से इनकार कर दिया, उसको नहीं मानते थे. उनको लगता था कि एक ऐसे ही आइडल टॉक है. At all events the great man of the prophecy had not yet appeared. क्योंकि अभी तक काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी जो है वो भविष्यवाणी अभी तक सही नहीं हुई है. नाउ द अर्नेस्ट रिप्लाई करता, ओ मदर. वो चिल्लाता, अपनी माँ के ऊपर चिल्ला के बोलता, ओह मदर. क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड. अपने सर के ऊपर जो है वो अपने हाथों को क्लैप करते हुए बोलता, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम. मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूँगा उस चेहरे को देखने के लिए. हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थाटफुल वुमेन. उसकी माँ जो है काफ़ी उसको प्यार करती थी और काफ़ी समझदार वुमेन थी. इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय. और यह काफ़ी उम्मीद से भरा था क्योंकि वो अपने बच्चे को डिस्करेज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके बच्चे के अंदर एक उम्मीद जगी थी और उस उम्मीद को जो है वो जारी रखना चाहती थी, ना कि कुछ ऐसा बोल करके उसकी उम्मीदों को तोड़ना चाहती थी. सो शी सेड टू हिम, परहैप्स यू मे. तो उसकी माँ उसको बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम तब तक बिल्कुल ज़िंदा रहोगे उस ग्रेट स्टोन फेस को देखने के लिए. एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट
forgot the story that his mother told him. और अर्नेस्ट बाद में उस कहानी को कभी भी नहीं भूला जो उसकी माँ ने उसको बताया था. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. जब भी वो great stone face को देखता था तो उसकी माँ के द्वारा बताई गई कहानी जो है उसके दिमाग में कौंधने लगती थी, रन करने लगती थी. He spent his childhood in the long cottage where he was born. उसने अपना बचपना जो है उस लंबे से कॉटेज के अंदर में बिताया जहाँ पे उसका जन्म हुआ था. Was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands. वो अपने माँ को काफ़ी मदद करता था चूँकि वो छोटा था, बट स्टिल वो हर ऐसे काम में अपनी माँ को मदद करता था. और उसके नन्हे नन्हे हाथ जो है काफ़ी कोमल थे, बट स्टिल वो अपनी माँ को जो है बहुत प्यार करता था. एंड मूव विथ लविंग हार्ट्स, क्योंकि वो अपने माँ को हृदय से प्यार करता था तो उनके हर कामों में वो मदद किया करता था. इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी एट ऑफन अ पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ. नाउ पेंसिव इज़ थाटफुल. तो कहता इस तरीके से वो जो अर्नेस्ट था धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वो एक थॉटफुल व्यक्ति था, सोचता समझता था बहुत सारी चीज़ों के बारे में. और ऐसे करके जो है उसका लाइफ जो है धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ आने लगा. नाउ अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम. अर्नेस्ट का कोई शिक्षक नहीं था, कोई टीचर नहीं था, लेकिन वो ग्रेट स्टोन फेस को जो है अपना टीचर मानने लगा. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours. जब उसका दिन का काम खत्म हो जाता था वो बाद में वहाँ पे बैठ करके उस ग्रेट स्टोन फेस को घंटों बैठ करके वहाँ पे निहारता रहता था. Until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. और वह वहाँ पे तब तक बैठा रहता था जब तक कि उसको इस बात का इमेजिनेशन जो है अपने आप में शुरू नहीं हो जाता था कि वो चेहरा जो है उसको पहचानने लगा है, उसको जो है स्माइल दे रहा है, यू नो, और उसको इनकरेज कर रहा है. तब तक वो वहाँ पे बैठ करके उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था. अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ र्यूमर throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. और कुछ समय के बाद जो है वहाँ पे एक र्यूमर, मतलब आप कह सकते हैं झूठ मूठ का एक फेक न्यूज़ जो है उस पूरे वैली में फैल गया कि जो जिस तरीके का मतलब ग्रेट स्टोन फेस का जो मतलब चेहरा है उसी तरीके का चेहरा मिलता जुलता जो एक गांव में देखा गया है, वो अपीयर हुआ है. इट सीम्स दैट मेनी ईयर्स बिफोर a young man had left the valley and settled at a distant seaport. Gather Gold, which was his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. और ये र्यूमर जो है ऐसे फैला और उसके बारे में मतलब ऐसा बताया गया कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा माना गया कि बहुत वर्षों पहले जो है एक यंग मैन जिसने इस वैली को, इस घाटी को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पे एक दूरस्थ सीपोर्ट पे जा कर के जिसका नाम गैदर गोल्ड है, वो वहाँ पे बस गया और वहाँ पे उसने अपना एक शॉप स्टैब्लिश किया. वहाँ पे वो दुकानदारी करने लगा और वहाँ पे चूँकि वो बिज़नेस में काफ़ी शार्प था तो उसने बहुत सारे पैसे कमाए और उसको बहुत साल, मतलब करीब 100 साल लगे उसको अपने द्वारा कमाए गए पैसे को काउंट करने में. इन दिस टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली. और इस बीच उसको अपने नेटिव वैली जहाँ पे वो पैदा हुआ था उसकी याद आई है. एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर. और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो उसको अब जो है अपने घर वापस आ जाना चाहिए. एंड 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 हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न. और अब जो है अपना बाकी लाइफ का बचा हुआ जो समय है वो उसी जगह पे बिताएगा जहाँ पे उसका जन्म हुआ है. So dear student, now we will continue this chapter story in the next part of the video. So stay tuned with the channel. Do like and subscribe the video. Send it to your, share it with your needy friends who want line by line explanation. Now we'll meet in the next part of the video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.